Hey guys, this is Kripali Patel. I am second year law student and I am here to tell you about some basic things that you might need on the first day or the orientation day that happens before the first day of your college. Okay, so first of all, congratulations guys. तुमको जहाँ पहुँचना था तुम पहुँच गए हो. And I remember my orientation day, I was very nervous. I was with one of my friends and we were together since the law studies. So I knew her since the law studies and we got together and our class was also same. And our rooms were just like beside each other's and our gallery was connected. So I was very excited. I was nervous and excited to see what the college will feel like. The very first day we stayed in the hostel at night, we roamed the whole college, okay? At night we went and we just roamed the whole college. If I can get the video of my reactions to things, I'll add that. But they were a bit dramatic reactions. But yeah. And just the feeling of getting there after too much pressure, stress, hard work, a lot of disappointment because of a lot of things did not work out the way it should have been or the way I hoped, the way my family hoped. But it all turned out great when I first came to that hostel, came to that college. And I get it. Okay, I am not that older than you. I just completed my first year, so I get your excitement, I get your nervousness, and I just get all the happiness you must be feeling. So just as a big sister, I'm very happy for you because I know a lot of my seniors were very happy after just listening to all my happiness rant. And a lot of my seniors from my school days were actually I have this one senior from my school days. He supported me so much throughout my journey of changing from science to law as well, and I'm very thankful to him. And if he is watching this video, he is very busy, but I genuinely am very, very, very happy that you are in my life. I'll tell you some basic things. Basic भी नहीं बोल सकते. Kind of. Just देखो ये. This is like talk session. Okay. This is going to be my talk session. If you want any advice, you can comment down below, and everything. If you want any videos, you can comment down below. Okay. Basically, जब पहला orientation day था, तब we were very excited. That was the first time I'm in my full attire of law school student, and I got very happy. I got very excited, and then everything started. Eventually my parents came. They were in the orientation sessions differently. Parents and students का अलग से था, and everything happened. Then हमको one-on-one session भी पता चला with teachers and everything, and parents वहाँ पे थे. सब हो गया और उसके बाद पेरेंट्स जा रहे थे. आई वॉज मोर ऑन माई एक्साइटमेंट जोन. तो मुझे अभी तक वो सेंटिमेंटल पार्ट हिट नहीं हुआ था लाइफ का कि हाँ अब घर से दूर रहना है, अब बहुत सारे काम खुद करने हैं. बट आई वॉज मोर एक्साइटेड बिकॉज आई लाइक टू डू स्टफ ऑन माई ओन इंडिपेंडेंटली एंड एवरीथिंग. और तब मेरे दिमाग में वो भी था कि चलो हाँ अब मम्मी नहीं बोलेगी कि कमरा साफ़ करना है, अब मम्मी नहीं बोलेगी, अब मम्मी नहीं डांटेगी, अब ये नहीं करना पड़ेगा, अब हमारे हिसाब से खा सकते हैं, हमारे हिसाब से सो सकते हैं. एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी एज ऑफ दैट टाइम. बिकॉज हाँ भाई तुमको खुशी होती है ये सब देख के, ठीक है. एंड आई स्टिल रिमेंबर वन मोमेंट. मेरे पापा जा रहे थे और पापा रो दिए. ही गॉट वेरी इमोशनल. पापा मम्मा दोनों बहुत इमोशनल हो गए थे. मुझे इतना रोना तब आया नहीं था. आई गेस आई वॉज जस्ट ऑन माई मोर एड्रेलिन रश. मेरा बहुत ज़्यादा था तब. और देन आई सेड गुड बाय एंड देन दे वेंट. और फिर बैक टू हॉस्टल. वी फ्रेंड्स जस्ट गैदर्ड, वी टॉक, वी प्लेड गेम्स रात को. एंड आई स्टिल रिमेंबर आई फाउंड अ गर्ल
the warden found a girl who was crying because she was missing her parents. And somehow मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोग जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं उनमें से भी कोई हो सकता है जिनको ये फीलिंग आ रही होगी कि घर से दूर कैसे मैनेज करेंगे, क्या होगा. टेंशन मत लो, ठीक है, आता है टेंशन लेकिन मैनेज हो जाएगा. एंड अगर तुम देखोगे ना तो बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी हेल्प कर देंगे, बस तुम्हें मांगना आना चाहिए हेल्प. यू डोंट हैव टू फील अशेम्ड कि तुम हेल्प मांग रहे हो. एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि ठीक है, नहीं आता है तो सीख लेंगे. मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी, मैंने सीखा. मुझे, अगर मेरी बात करूँ, मुझे वो जो इंडक्शन था मैंने कभी यूज़ नहीं किया है. मेरे घर पे गैस और ओवन था तो मुझे वही पता था. मुझे इंडक्शन की सेटिंग्स भी नहीं पता थी क्या होता है. एंड विच वॉज वेरी स्कैरी फॉर मी एट द फर्स्ट टाइम बिकॉज आई वाज लाइक, क्या पूछूंगी तो फिर सबको लगेगा कि मुझे यूज़ भी करना नहीं आता, ये भी करना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता. लेकिन फिर इवेंचुअली तुमको पूछना ही पड़ेगा या यूट्यूब से देखना ही पड़ेगा. उससे अच्छा पूछ लो. दोस्त होता है ना, मदद कर देते हैं, ठीक है, कोई भी होता है वो मदद कर देते हैं, सिखा देंगे लोग. इट्स नॉट दैट ऑफ अ बिग डील. तुमको बस पूछना है, तुमको बस ध्यान से. अगर तुमको पूछना भी नहीं है सो लाइक इट विल ऑल गेट सेटल्ड. इतना कोई लोड नहीं है लाइफ का जो तुम अकेले नहीं कर सकते. नेक्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज इज कि ना, देखो, बहुत सारे लोगों के रूममेट्स के साथ ना फर्स्ट डे पे बहुत अच्छा बन जाता है. कुछ लोगों का नहीं बनता है, मंथ्स लग जाते हैं. कुछ लोगों का बनता है, नहीं बनता है, बनता है, नहीं बनता है, ऐसे पूरा ऐसे ऐसे उसे ऊपर डाउन अप डाउन होता है. पर ना तुमको ये चीज़ एक दिमाग में रखनी पड़ेगी. तुम 3 लोग हो रूम में या 2 लोग हो रूम में जो इंडिया के, शायद दुनिया के भी बहुत ही डिफरेंट एरियाज से आए हो सकता है सेम एरिया के भी हो, लेकिन तुम्हारी अपब्रिंगिंग अलग है, तुम्हारा खाने का कल्चर अलग है, तुम्हारा एन्जॉयमेंट का कल्चर अलग है, तुम्हारा स्लीप स्केड्यूल अलग है, तुम्हारा स्टडी स्केड्यूल अलग है. तो दिक्कत आएगी, ठीक है. इट्स नॉट लाइक कि दिक्कत नहीं आएगी. तुमको ये चीज़ याद रखनी है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट है ना वो नहीं जाने देनी है. जब वो चीज़ तू मैं में होने लगती है ना तब वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है. यू हैव टू प्रिटी मच अंडरस्टैंड द फैक्ट कि तुम तीनों अलग हो. दैट इज़ गोइंग टू हैपन विच इज़ वेरी मच ऑल राइट, ओके. लेकिन तुम तीनों को अब वो अपनी जो डिफरेंसेस है वो अलग रख के सिमिलैरिटीज़ को ढूंढ के एक रूम में अच्छे से शांति से रहना है. क्योंकि ब्रो अभी जो मेरे रूममेट्स थे मेरी उनके साथ बहुत अच्छी बनती है. आई एम इन टच विद देम एंड एवरीथिंग. बट स्टार्टिंग के 3-4 months वी 3 वर नॉट इन अ गुड प्लेस, ओके. तो वो चीज़ क्या होती है ना कि मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और मेंटली तुम पागल हो जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो कि क्या हो रहा है. और तुम पढ़ाई पे नहीं ध्यान दे पाओगे, तुम फ्रेंड सर्कल पे ध्यान नहीं दे पाओगे, जिसकी वजह से ना बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं. तो तुमको वो चीज़ थोड़ा सा दिमाग में रखनी पड़ेगी कि अगर तुम्हारे रूममेट्स के साथ सॉर्टेड नहीं है तो शायद तुम्हें मेंटली बहुत अफेक्ट करेगा. तो तुम कर लो, शांति से बैठो, रूल सेट कर दो. पहले दिन तीनों बैठो, रूल सेट कर दो कि यार, रूल सेट कर दो मतलब मुझे बता दो कि यार मुझे ना पर्दे बंद लगते हैं इतने से इतने समय तक. तो अगर तुम्हारे लिए ओके है तो कैन आई क्लोज दैट कर्टन्स. यू जस्ट हैव टू टॉक इट आउट. इफ़ यू टॉक इट आउट इट्स गोना गेट सॉल्व्ड. टॉक इट आउट. एंड एक और चीज़, रूमर्स को मत सुनना, ठीक है. ये मैं अलग ही टॉपिक बना देती हूँ एक्चुअली. सी, कॉलेज और हॉस्टल में बहुत सारे रूमर्स फैलेंगे. तुम अपने बारे में रूमर सुनोगे, तुम अपने दोस्तों के बारे में रूमर सुन सकते हो, तुम अपने क्लासमेट्स के बारे में सुन सकते हो, तुम अपने रूम के बारे में सुन सकते हो, तुम अपने सीनियर्स के बारे में सुन सकते हो. लेकिन तुमको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि तुम उस इंसान को जैसे जानते हो, तुम अपने आप को जैसे जानते हो, तुमको बस वही याद रखना है, ठीक है. देखो, हो सकता है कि तुम जाओ, थोड़े देर लगे, 1 वीक हो, 2 वीक हो, तुम्हारे बारे में कोई रूमर बन जाए, तो एन्जॉय द स्पॉटलाइट एट दैट पॉइंट. क्योंकि ना रूमर सबके बारे में आते हैं, थोड़े पीरियड के लिए रहते हैं, चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं जब जूनियर्स आते हैं कि उनको भी रूमर्स पता चलेगा, और फिर वो वापस थोड़े टाइम के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं. अब
इस चीज़ में क्या होता है ना कि तुम अपने मेंटल स्टेट को बिगाड़ दोगे। मैंने अपने बारे में बहुत सारे रूमर्स सुने, लेकिन मेरा मेंटल स्टेट वहाँ पे हिल गया था। फिर एट दैट पॉइंट आई गॉट अ वेरी गुड रूममेट। ओके, मेरी रूममेट इज़ वेरी चुम्मा एंड शी इज़ लाइक माई बिग सिस्टर, शी इज़ लाइक माई एल्डर सिस्टर। एंड उसने मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट किया था कि यार रूमर्स ना आएंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन तुझे पता है कि तुझे उस चीज़ से अफेक्ट नहीं होना, क्योंकि तेरी लाइफ के गोल्स अलग है। यू कांट गेट अफेक्टेड बाई सम थिंग्स विच अ पर्सन सेड बिकॉज ही प्रॉबेबली डज नॉट लाइक यू, और दैट पर्सन प्रॉबेबली लाइक्स यू, योर प्रॉब्लम डज नॉट लाइक यू। तो वो चीज़ तुम लोगों को बहुत ध्यान से रखनी पड़ेगी कि तुम रूमर्स सुनोगे, लेकिन रूमर्स के ऊपर से झगड़ा क्रिएट नहीं होना चाहिए, इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने रूमर्स सुने हैं अपने बारे में, लेट इट गो। अगर तुम वैसे इंसान हो, तुमको पता है तुम्हें क्या करना है, तुम वैसे इंसान नहीं हो तो मैटर ही नहीं करता। लोग सोचेंगे, तुम उनको जाके क्लियर भी करोगे ना, यार नहीं, कितनों को क्लियर करोगे मुझे बताओ। पूरे हॉस्टल में भी तुम क्लियर करने जाओगे ना तो भी 2 इंसान होंगे उसमें से जो लोगों को पता नहीं चलेगा कि तुम क्लियर कर रहे हो। तीसरा इंसान बोलेगा कि तुम क्लियर कर रहे हो क्योंकि तुम में वो प्रॉब्लम है, तो तुम बस बताना चाहते हो कि नहीं। ऐसे ऐसे लॉजिक लगाएंगे ना लोग कि तुम्हारा खुद का दिमाग ख़राब होगा। तो उससे अच्छा है कि छोड़ दो, ठीक है। ये एडवाइस मैं अभी इसलिए दे रही हूँ कि अभी सब ना कॉन्फिडेंस में आएंगे, और ये एडवाइस अगर मुझे तब किसी ने दी होती ना जब मैं कॉन्फिडेंस वाले स्टेज में थी, तब शायद मेरे पे बहुत इफेक्ट करता है ये चीज़, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जब तुम कुछ चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते और वो तुम्हारे को हिट करती है ना, तो बहुत बुरा लगता है, और वो बहुत गंदी तरीके से हिट करती है। इसलिए मैं तुमको सिर्फ इतना बोलूँगी कि ये जो रूमर वाली चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ होती है, ठीक है। तुम्हारे बारे में गॉसिप होगी, तुम्हारे बारे में रूमर होगा, बहुत कुछ होगा। तुम्हारे रूम के बारे में हो सकता है कि इनकी नहीं बन रही है, इनका झगड़ा हो रहा है। सच है तो सॉर्ट करो, बाहर नहीं जानी चाहिए बातें। एक रूम के अंदर की बातें रूम के अंदर ही रहनी चाहिए, और दोस्तों के ग्रुप की बातें ग्रुप के अंदर ही रहनी चाहिए, जो होगा नहीं, ठीक है, नहीं होगा। लेकिन खुद के लिए ट्राई करो कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ ना बिगड़े, ठीक है। ये तो पूरा दिल से आया है, ठीक है। रूमर वाली चीज़ मैं तुमको बता रही हूँ, ये जो एक्सप्रेशन और ऐसे अंदर से जो खुन्नस निकल रही है ना रूमर को लेके, ये मेरे अंदर से आया है। और देखो, हो सकता है कि तुम लोग अपने दोस्तों के साथ आए हो, या अपने कोई सीनियर तुमको पता होगा, और हो सकता है कि तुम उनके बारे में भी रूमर सुनो। यार देखो, अगर तुमको उस चीज़ पे उनको जज करना है तो तुम करो, वो तुम पे है। उस चीज़ पे तुमको उनसे क्लियर करना है तो तुम वो भी कर सकते हो। उस चीज़ को तुमको जाने देना है, और जैसा रिलेशनशिप है दोस्तों के साथ या सीनियर्स के साथ वैसे कंटिन्यू करना है, तुम वो भी कर सकते हो। बस इतना याद रखना कि कुछ भी हो जाए, अपना कॉन्फिडेंस मत गिरने देना, बिल्कुल मत गिरने देना, ठीक है। हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मैं बहुत गंदा रॉक बॉटम हिट की हुई हूँ, लेकिन टर्न्स आउट इट डज नॉट मैटर। जो लोग तुमको जानते हैं वो तुमको अच्छा ही समझेंगे, जो तुमको नहीं जानते वो तुमको बुरा ही समझेंगे, क्योंकि द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ एवरी पर्सन इज़ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। और अगर किसी ने तुम्हारे बारे में बुरा बोल रखा है उनको, तो ऑफ कोर्स दे विल गो ऑन डिफेंसिव मोड कि यार मुझे इस इंसान से दूर रहना है। कुछ लोग होते हैं जो जज नहीं करेंगे, कुछ लोग होंगे वो बहुत जज करेंगे, बट होगा, सब कुछ होगा, मिक्स मसाला सब कुछ होगा। लेकिन ट्राई करना कि बस कॉन्फिडेंस ना गिरे, और प्लीज़ गिर रहा है तो किसी को कांटेक्ट करो, अपने सीनियर से बात करो, मुझसे बात करो, किसी से भी बात करो कि यार मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकती हूँ। क्योंकि ना हम सब समझदार हैं, ठीक है। इमोशनली इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लॉजिकली इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, तुम कितने भी समझदार हो, जब तुम ऐसी सिचुएशन में होते हो ना, जो सिचुएशन तुम्हारे लिए नहीं होती है, या कोई ऐसी सिचुएशन में जो तुम्हारे लिए पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अटैकिंग है, तब कहीं ना कहीं तुमको एक सेन इंसान की ज़रूरत पड़ जाती है कि वो तुमको सिर्फ जो चीज़ तुमको पता है वो वापस से बता दे। ये सब चीज़ें तुमको पता है, ये सब चीज़ें मुझे भी पता थी, लेकिन तब मुझे कोई रिमाइंड करवा देता ना, तो शायद वो सिचुएशंस मेरी इतनी ज़्यादा नहीं गिरती मेंटली। और अभी मैं शायद तुमको रिमाइंड करवा दी तो शायद तुम्हारी भी ना गिरे।
बेसिकली ये वीडियो बहुत शॉर्ट मैं रखने की कोशिश कर रही हूँ, बट होगा नहीं। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि हॉस्टल लाइफ बहुत ज़्यादा फ़न भी हो सकती है, बहुत बार ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकती है। मेरी स्ट्रेसफुल थी, फिर फ़न थी, फिर मेरी स्ट्रेसफुल और फ़न दोनों थी, ठीक है। और मेरी डिस्गस्टिंग भी गई है, फिर अच्छी भी गई है। और कॉलेज लाइफ ना सेम है, बहुत ही अप एंड डाउन होगा। बस हिम्मत मत हारना। इट साउंड वेरी क्रिंज, लेकिन ये नीडेड है, बहुत ज़्यादा नीडेड है। किसी का ये बोलना कि हिम्मत मत हारना, किसी का ये बोलना कि आई एम देयर फॉर यू, एंड किसी का ये बोलना कि तुमको अगर ज़रूरत है तो हम वहाँ पे होंगे, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आई एम देयर फॉर यू, आई एम गोना हेल्प यू आउट, and there are going to be a lot of other people who are going to help you out, and they are going to be there for you. हिम्मत मत हारना, चाहे फिर वो फर्स्ट डे पे कुछ हो रहा हो कि फर्स्ट ईयर के एंड पे कुछ हो रहा हो। You'll get your people, you'll have your people, even if for a long period of time you don't have your people. कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गया, आई डोंट थिंक सो। एंड लास्ट वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि तुमको थोड़ा मोटिवेशनल ज्ञान चाहिए। थोड़ा सा ये हो गया कि मैं आज ये वीडियो पोस्ट करूँगी, बिकॉज आई थिंक टुडे इज़ अ लॉट ऑफ कॉलेज इज स्टार्टिंग। और तो क्या, मैं आई गेस आज शायद 2 वीडियो पोस्ट कर दूँ या फिर थोड़ा जल्दी पोस्ट कर दूँ। आई एम गोना टेल यू माई जर्नी फ्रॉम लॉस्ट साइंस स्टूडेंट टू अ लॉ स्टूडेंट इन माई नेक्स्ट वीडियो, and my personal experiences as well. Like, I'm not gonna tell you a lot of gossip, but I might tell you a lot of my personal experience from college life. So I am very happy to see you guys as my juniors this year, and hopefully whoever and whatever college you are in, I hope you all the very best for that. एंड जो मेरे जूनियर्स आ रहे हैं, आई विल सी यू इन अगस्त, बिकॉज हमारा ब्रेक चल रहा है इंटर्नशिप के बाद। वी हैव ऑनलाइन क्लासेस, तो हम अगस्त तक नहीं आएंगे ऑफलाइन क्लासेस के लिए। सो आई विल सी यू इन अगस्त। बाय बाय।